Jai Hind friends, welcome to this next session of current affairs for the month of August. I am really sorry for the delay. Actually, I was not very well as per my health is concerned. So yes, we are back now. Now I will try to bring some regular classes for you, some regular recorded videos. So let us start today's class. So guys, this is my own initiative. This is my YouTube channel for all the defense exams in our country. That includes UPSC, NDA, CDS, FCAT, CAPF for 2021. So all of you, those who don't know me, my name is Anshum Verma, and these are my credentials, guys. I come from a defense background. I have done my schooling from Army Public School, Delhi Can, and this is what my credentials are. I have qualified UGC NET JRF exam. That means I am eligible to teach as an assistant professor in any university. Then I already have a teaching experience of 10 years. I have mentored somewhere around lakh students in my 10 years of career. Then I have myself qualified various defense exams. If I talk about CDS exam, I have qualified this exam 7 times. Okay, so this is my channel, guys, Anshum Until the Uniform. I just request everyone to subscribe to this channel, hit the bell icon so that whenever I come live, you will be notified with the notifications. And also, please give me some likes when you are watching this video. This is my WhatsApp number. If you need any help, how to start your preparation, how to go about the things, you can reach me on this WhatsApp number. Please WhatsApp me, feel free. And this is my Telegram channel. The link is given in the description box. All my PDF and everything will be uploaded on this Telegram channel. Okay. So these are the courses that I will be offering you guys. There will be a complete batch for SSB जो मैं आपके लिए launch करूंगा, जिसमें आपको officers like quality, procedure at SSB, screening test, psychological test, ground training test के बारे में, mock interviews and PIQs, everything I will share it with you. Then guys, रिटन एग्जाम के लिए मैं आपके साथ जो कोर्सेज मैं आपको पढ़ाऊंगा वो होगा कंप्लीट जनरल स्टडीज के कोर्सेज. ठीक है, जनरल स्टडीज में जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, जो सबसे टफ पेपर माना जाता है सीडीएस एग्जाम में, एनडीए एग्जाम में, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो कंप्लीट जनरल स्टडीज का मैं कवरेज आपको यहाँ पर देने वाला हूँ, जिसके अंदर रिटन प्लस एसएसबी के सेशंस होंगे. और ये जो मेरा करंट अफेयर विद अप्लाइड जीएस कोर्स है, ये अभी जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपको जरूर हेल्प करेगा. ठीक है, इस एग्जाम्स को प्रिपेयर करने में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्पेशलाइजेशन है. यहाँ मैं करंट अफेयर को जीएस के साथ लिंक करके पढ़ाता हूँ, और यूपीएससी भी बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस पूछती है. So these are the benefits of my course. You will be getting some structured courses. I will complete the course well within the time. Then regular classes, study material, free revision classes. Before the exam, I will be providing you some recorded sessions as well, ताकि आप बाद में भी उसको देख सकते हो. It will be a link generated session. Then guys, I will be providing you personal evaluation. For example, if you enroll for my SSB program, I will be giving you some personal evaluation, that I will be checking your TAT, your VAT, your SRTs, your WATs, your SDs. I will be personally evaluating that. Even if you have any doubts in your GS part, you can also reach to me personally. I can clear your doubts over call. So these are the things that you will be getting in my classes. Then lifetime support. Even if you complete one-time course with me, I will be providing you help in the form of doubts, or if you want to even attend some classes even after that as well, I will be providing you that as well. And yeah, obviously जितने भी खूंखार शख्स मुझे जानते हैं, वो जानते हैं that I have a very unique way of humorously explaining the things, so that आपको चीजें बहुत अच्छे से इम्बाइब हो जाएं, आप चीजें बहुत ज्यादा समय के लिए रिटेन कर पाए. So this is my current affair course, guys. Right now I'm covering August, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा था. आई वॉज अर्लियर टीचिंग ऑन एन अकेडमी, बट येस, आई हैव स्टॉप्ड देयर बिकॉज ऑफ सम cheating that they have done with me. So anyways, guys, I am continuing my sessions from there only, जितना मैंने वहाँ छोड़ा था, ताकि there is no backlog for any of the regular student जो मुझे starting से follow कर रहा है. So guys, my current affair session includes every bit of important current affairs from Hindu newspaper or Indian Express. ठीक है, आपको इन सारे इंपॉर्टेंट पेपर से कंटेंट मिलेगा. साथ में ऑनलाइन मैगजीन से मैं आपको यहाँ पर कंटेंट दूंगा.
ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। आपको डेली हिंदू वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ चीजों को मंथली बेसिस पर एनालाइज कर सकते हैं। देन हिंदू इंडियन एक्सप्रेस ऑनलाइन मैगजीन्स के अलावा अगर कोई ऐसी सोर्स भी होती है मैं उसको भी इंक्लूड कर लेता हूं जो गवर्नमेंट ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज होती है, जैसे पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो के डिस्कशंस, ये सब आपको बहुत हेल्प करेगा गाइस फॉर एसएसबी। ठीक है, ये एसएसबी में आपको बहुत हेल्प करेगा, साथ में सीएपीएफ के एसेज में, ठीक है, सीएपीएफ के एसेज में आपको ये हेल्प करेगा। देन गाइस मेरे अपने करंट अफेयर के नोट्स होते हैं, बिकॉज आई एम अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, सो मेरे अपने खुद के नोट्स हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। सो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए आपको लिंक मिल जाएगा। सो ये सारे टॉपिक्स है गाइस हम जो कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। मैं ऑलरेडी इन सेक्शंस के वीडियोस में ले चुका हूँ, पॉलिटी, नेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल रिलेशन, डिफेंस, साइंस एंड टेक, गवर्नमेंट स्कीम। ये पर्टिकुलर वीडियो हम एनवायरमेंट पे बात करेंगे, और इसके बाद जो वीडियो होगा वो मिसलेनियस वीडियो होगा, जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, आर्ट एंड कल्चर, डेट्स एंड डेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिसलेनियस वाला, क्यों? बिकॉज यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे एफकैट में, एनडीए जैसे एग्जाम्स में, या एट टाइम्स सीबीएसई एपीएफ में भी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे स्पोर्ट्स से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो आपको इन सब चीजों को भी बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। चलिए शुरू करते हैं गाइस। एनवायरमेंट। नाउ गाइस मैं आपको बस एक ये छोटा सा रिमाइंडर दूंगा कि एनवायरमेंट एक ऐसा एरिया है यूपीएससी के एग्जाम्स में, या इनफैक्ट मैं कहूंगा किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एनवायरमेंट से क्वेश्चन लाजमी है, एनवायरमेंट से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, बिकॉज यस इंसान ने एनवायरमेंट को खराब करना बहुत ज्यादा खराब कर दिया है, एंड इसके प्रिजर्वेशन पर अब बहुत ज्यादा काम हो रहा है, इसके ऊपर बहुत स्टडीज करी जा रही हैं, हर रोज कुछ ना कुछ नई रिपोर्ट्स आती हैं, तो ये एरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हो कि आप सबकी डिग्रीज में, जो भी आज के टाइम में आप प्रोफेशनल डिग्रीज कर रहे हो या रेगुलर ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन में भी एक जो ईयर है उसमें एक पेपर आपका कंपलसरी एनवायरमेंट हो गया है, दैट मीन्स आपको एनवायरमेंट का पेपर निकालना ही पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एम्फसाइज हियर। एनवायरमेंट को हम बहुत सारे टीचर्स इग्नोर कर देते हैं, बट ये सेक्शन अब बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, सो मैं इसको अलग से सेपरेट कराता हूँ। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, जिसने भी अभी तक नहीं करा है, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है स्मोक टावर्स। ये स्मोक टावर्स पहले के करंट अफेयर्स में भी न्यूज में आया था, बट दिल्ली में एज यू सी एज वी अप्रोच, अभी जैसे अगस्त महीने का करंट अफेयर चल रहा है, सो इस टाइम पर हम दिल्ली में अभी भी आपको एट प्रेजेंट, हम नवंबर दिसंबर शुरू हो गया, आपको पता ही है पॉल्यूशन का हाल हमारे देश में कितना खराब हो रहा है। इस साल फिर भी थोड़ा सा बेटर हम कंपेयर कर सकते हैं कि लास्ट ईयर से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, सरकार के प्रिपरेटरी स्टेप्स, बट ये स्टेप्स अभी भी उतने कारगर नहीं है जितने होने चाहिए थे, पोल्यूशन से अभी भी लोग परेशान हैं। सो उसके लिए एक एयर प्यूरिफायर्स जो आप घर में यूज कर सकते हो, उसी को आपने उसी का बड़ा वर्जन यूज कर दिया है, कहां पर? हमारे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज पर जिसको हम स्मोक टावर्स के नाम से जानते हैं। सो इट इज अ स्ट्रक्चर डिजाइन टू वर्क एज लार्ज स्केल एयर प्यूरिफायर। ओके, नाउ इट इज फिटेड विद मल्टीपल लेयर ऑफ फिल्टर्स जस्ट लाइक योर एयर प्यूरिफायर। जैसे आप देखा होगा ये घर में जो एयर प्यूरिफायर यूज कर सकते हैं, इसमें बहुत ही लेवल के मल्टीपल एयर फिल्टर्स होते हैं, जो क्या होते हैं, फाइन डस्ट पार्टिकल्स को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नाउ गाइस जो सबसे खतरनाक जो चीज होती है, जैसे हमने देखा था, ये बहुत कॉमन है आपके बीजिंग जैसे शहर में, बीजिंग जैसे शहर में आपको मिलेंगे, शंघाई जैसे शहर में आपको मिलेंगे, दैट पीपल कैन नॉट मूव आउट विदाउट मास्क। वो साल के 12 महीने मास्क पहन के रखते हैं गाइस, हमें तो फिर भी अभी अभी आदत पड़ी है। क्यों? क्योंकि वो शहर इतने ज्यादा पॉल्यूट हो चुके हैं। बट मास्क का भी जो आप कह सकते हो कि डीमेरिट है, वो मास्क का डीमेरिट सबसे पहले ये है कि वो PM 2.5 को एब्जॉर्ब नहीं करता। दैट मीन्स इवन इफ आप मास्क पहन के रखोगे, PM पार्टिकुलेट मैटर, PM 2.5 क्या होता है? पार्टिकुलेट मैटर, ये वो माहीम कण है पार्टिकुलेट मैटर जो 2.5 नैनोमीटर के होते हैं, यानी बहुत ही स्मॉल ये पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल कह लो,
जो कि हवा में तैर रहे हैं और ये आपके लंग्स में जाके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसके साथ PM10 भी होता है। PM10 तो फिर भी कुछ हद तक रुक जाता है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो PM2.5 है। So air is drawn through the fans installed at the top of the tower. It passed through filters and then released near the ground. So जो टॉप से, अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ से ये एयर एब्जॉर्ब करेगा, उसमें फिल्टर आउट करेगा और उस फिल्टर के थ्रू ये ग्राउंड से उसको रिलीज कर देगा। Now why it came in news? Because Supreme Court last year had directed the authorities to take the measures, including and asking the Delhi government and CPCB, Central Pollution Control Board, to submit a comprehensive plan on setting up the smoke towers in the capital. So ये जगह जगह पर इंस्टॉल करे जाएंगे guys. Now in later in the January, that means the January 2020, the court has directed 2 towers should be installed in the capital by April as a pilot project. But guys, we all know the timeline was never met. हमारे देश में अगर मैं आपको कोई टारगेट दूं, बिकॉज मैं भी जो आपको पढ़ाई कराता हूँ वो टारगेट बेस्ड स्टडी कराता हूँ, ठीक है, वीकली मैं आपको टारगेट्स देता हूँ। सो ये टारगेट बेस्ड स्टडीज को आप सबसे पहले कोई भी टारगेट मीट नहीं कर पाते, बिकॉज हम इंडियन से बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नहीं है हम अपने किसी भी चीज में, ठीक है। सो गाइस, ये आपको मैं पढ़ाई के हिसाब से भी बता रहा हूँ, या अपने अपने लाइफ में किसी भी चीज पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं कि यू शुड ऑलवेज सेट सम टारगेट्स एंड ट्राई टू अचीव इट। आपके पास एक टारगेट होना चाहिए कि हाँ, अगले 8 बजे तक मुझे ये कर लेना है, मुझे ये खत्म कर लेना है, ठीक है, क्योंकि टारगेट आपको मोटिवेट करते हैं अपने गोल्स पर चलने के लिए। बट अगेन, अगर आप सरकारी कामों में देखोगे गाइस, सरकारी कामों में हाल बहुत मुश्किल ही, रेयर ही केस होते हैं जिसमें हम टारगेट मीट कर पाते हैं। सो इसका भी नहीं करा। वैसे अभी मैं आपको प्रेजेंट सिनेरियो में बता दूं, दिल्ली में 2 स्मोक टावर्स लग चुके हैं, एक पड़परगंज साइड लगा है और एक दिल्ली के कनाट प्लेस यानी सेंट्रल दिल्ली में लगा है। सो आर दे हेल्पफुल? यस। द स्मोक टावर्स हैव बीन एक्सपेरिमेंटेड विद द रीसेंट ईयर्स इन द सिटीज लाइक नीदरलैंड। सो नीदरलैंड जैसे शहरों में, चाइना में, साउथ कोरिया में, इन सबको सक्सेसफुली लगाया गया है। नाउ द फर्स्ट सच टावर वाज इरेक्टेड इन 2015 इन रॉटरडैम, नीदरलैंड, and it can filter almost 30,000 cubic meters of air per hour around it। ठीक है, तो सबसे पहला नीदरलैंड में लगाया था गाइस। अगेन, वहां पर तो इतनी पोल्यूशन की प्रॉब्लम भी नहीं है, बट एक्चुअली होता क्या है, उनकी जब एयर पहुंचती है ना 150 से 200 जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, उनके लिए वो हाई तौबा हो जाती है। वो रेड अलर्ट इशू कर देते हैं कि पीपल डोंट मूव आउट बिकॉज एयर बहुत पोल्यूटेड है। ये 200 एयर प्यूरिफायर की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो ये 200 रीडिंग है गाइस, ये हमारे इंडियंस के लिए नॉर्मल है, ठीक है, क्योंकि हमें आदत है 800 से 900 प्यूरिफायर इसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स की एयर को इनहेल करना, ये हमारे लिए नॉर्मल है। सो द एक्सपर्ट्स हैव सेड दैट द टावर्स वुड क्रिएट अ क्लीन एयर जोन्स, यानी कुछ ऐसे पॉकेट्स बनेंगे जो एकदम क्लीन रहेंगे। द टावर वुड रिड्यूस 50% of the particulate matter load and the fine dust particles suspended in the air in an area of 1 kilometer in the direction of the wind। ठीक है, तो लगभग 1 किलोमीटर के एरिया में ये पार्टिकुलेट मैटर को कम से कम 50% से ज्यादा रिड्यूस कर सकता है, एज वेल एज 200 मीटर ईच along the sides of the tower and against the direction of the wind। So again, you can relate it to this way, that it will be purifying the air in the direction of the wind and opposite direction of the wind. In every bit, it will be clearing the air. So why Delhi needs such measures? Delhi को इसकी जरूरत क्यों है? Because air pollution in national capital has been a issue of concern। ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और दिल्ली तो एक समय पर दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड सिटीज में आ गया था, ठीक है। ये कई बार ऐसा हो चुका है कि उस रैंकिंग में दिल्ली का रैंक, एंड इट इज द कैपिटल गाइस। सो WHO हैज डिक्लेयर्ड दैट दिल्ली द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन 2014, यानी दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड शहर है दिल्ली। सो इसमें एक सबसे ज्यादा चीजें एक टेंशन भरी हो जाती है। सो द पोल्यूशन लेवल ऑफ दिल्ली इंक्रीजेस ड्रामेटिकली ड्यूरिंग विंटर। तो गाइस, हम अगर इसकी बात करें, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर कंसेप्ट पढ़ाऊं, जनरल स्टडीज की हम बात करते हैं, इसके कंसेप्चुअल नॉलेज की बात करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाई इट राइजेस इन विंटर्स, ये विंटर्स में ही क्यों ज्यादा हो जाता है, तो इसको समझने के लिए आप इस हिसाब से समझिए कि विंटर्स में
नाउ गाइस, अगर हम समर्स की बात करें तो समर्स में क्या होता है, दिल्ली जैसे सिटीज का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। दिल्ली जैसे सिटीज का अगर टेम्परेचर हाई होगा, दैट मीन्स यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, बिकॉज जो एयर होगी वो हीट होने के बाद आई एम सॉरी राइज अप करेगी। ठीक है, सो जो एयर होगी वो राइज अप करेगी, और जैसे ही राइज अप करेगी तो वो अपने साथ डस्ट पार्टिकल एंड पार्टिकुलेट मैटर को हवा में ऊपर ले जाएगी। बट विंटर्स में गाइस, एयर जो होता है, एयर का जो टेम्परेचर होता है वो रिलेटिवली कोल्डर होता है, यानी वो ठंडी है। और ठंडी एयर क्या करेगी, नीचे बैठेगी, नीचे की ओर बैठेगी, क्योंकि भारी हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पर एक हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तो जितना भी पार्टिकुलेट मैटर है वो सरफेस के पास आपको मिलेगा, और इंसान भी कहाँ रहता है दोस्तों, सरफेस के पास। इसलिए ये सर्दियों में प्रॉब्लम एग्रीवेट हो जाती है। हाँ, इसके कुछ अदर रीजंस भी हैं। जो अदर रीजंस है वो मैं आपको बता दूं। जो कॉमन ये पार्टिकुलेट मैटर बनता है वो है कंस्ट्रक्शन वर्क से आपको मिलेगा, इंडस्ट्रियल एंड व्हीकुलर पोल्यूशन। ये तो देखो ऑन गोइंग पोल्यूशन, हमारे एयर पोल्यूशन के जो फैक्टर्स है हमारे देश में, ठीक है, ये रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, बट ये एग्रीवेट कब हो जाती है, सबसे ज्यादा क्या होता है, ये हम सब जानते हैं, स्टबल बर्निंग। हमारे जितने भी एग्रीकल्चरल स्टेट्स हैं, जितने भी हमारे एग्रीकल्चरल स्टेट है गाइस, जिसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये दिल्ली को अगर आप मैप पे देखोगे सराउंड करते हैं लगभग चारों तरफ से। अब होता क्या है, इन सारी जगहों पर गेहूं, खास तौर पर जिसे हम वीट, जिससे जो सबसे ज्यादा मेजॉरिटली नॉर्थ इंडिया में उगता है, और ये वो बेल्ट है, ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट बेसिकली। सो इस जगह पर बहुत ज्यादा जो जो मेथड्स होते हैं, जो जो एक बार कटाई हो जाती है किसकी, इन सब की, जो जो क्रॉप है उसकी कटाई हो जाती है, उसके बाद कुछ उसका रेजिड्यू सॉइल में रह जाता है, उसी को हम स्टबल या हिंदी में पराली बोलते हैं। अब किसान क्या करते हैं, उस स्टबल को अगली फसल डालने के लिए आपको स्टबल को हटाना है, तो उस खेत में आग लगा दी जाती है। अब होगा क्या, उस आग से जो नाइट्रोजस वेस्ट कलेक्ट होता है वो फसल सॉइल के लिए भी बेटर होता है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, बट ये सॉइल को एनरिच कर देता है। तो उससे दोनों उनके फायदे हो जाते हैं। बट उससे जो सबसे बड़ा नुकसान है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में, अब सोचो इतने 50-50 एकड़ के लैंड है, खेत है, उसमें अगर सारे में ऐसी आग लगा दी जाए तो कितना स्मोक क्रिएट होगा। और वो ही स्मोक, दिल्ली की कुछ जोग्राफिकल कंडीशन ही ऐसी है कि विंड्स दिल्ली की तरफ चलेंगी, और वो ही स्मोक दिल्ली के अराउंड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको फॉग मिलेगी और ये सब चीजें मिलेंगी। ठीक है, so this is the reason which you know which it is aggravated in winters. By the way, ये जो इमेज में आप टावर देख रहे हो, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्मोक टावर है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्मोक टावर है। अब मुझे आपको बताना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये कौन सी सिटी में है और कौन सी कंट्री में है। ऑब्वियसली सबसे पहले तो कंट्री बताइएगा, कौन सी कंट्री की कौन सी सिटी में ये दुनिया का सबसे बड़ा स्मोक टावर बनाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, नाउ व्हाट आर द मेजर्स दैट गवर्नमेंट्स हैव टेकन टू कंट्रोल द पोल्यूशन, हम इसकी भी बात कर लेते हैं। गाइस, ये पोल्यूशन पर CAPF वाले जितने भी मेरे साथी हैं, पोल्यूशन पर अपना एक टॉपिक जरूर तैयार कर लेना। जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई अपने ऐसे में आप ऐड कर सकते हो, एक गारंटेड आपको यहां से एक टॉपिक जरूर ऐसे में आने वाला है। So persuading farmers in Punjab, Haryana to use mechanical alternatives to stubble burning. Closure of thermal power stations in Delhi. ठीक है, यहाँ पर जितना भी कोयले से बिजली बनती थी दिल्ली और दिल्ली के अराउंड, उस सबको बंद कर दिया गया है, बिकॉज कोयले से बनने वाली बिजली से भी बहुत सारा स्मोक रिलीज होता है। मेकिंग इंडस्ट्रीज यूज पाइप्ड नेचुरल गैस, ठीक है, ये सब भी होने लगा है। कंट्रोल द measures taken under graded response action plan when the pollution levels spikes up। यानी graded response action plan गवर्नमेंट का ही एक प्लान है, गार्प प्लान। इसको मैंने लास्ट करंट अफेयर्स में कवर करा हुआ है, तो जरा इसके बारे में आप जरूर पढ़ लेना कि व्हाट इज गार्प, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये मैंने डिटेल में पहले बात करी हुई है, डोंट वरी, आगे हम इसको किसी ना किसी वजह से न्यूज में फिर आएगा, मैं इसको डिटेल में ऐड कर दूंगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं। देयर इज अ रीसेंट रिपोर्ट बाय यूनिसेफ। अच्छा, फटाफट जितने भी एफकैट वाले साथी हैं, जरा मुझे यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कमेंट बॉक्स में बताइए कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है। जल्दी अभी इसी वक्त कमेंट बॉक्स में पॉज कीजिए वीडियो को,
इसी वक्त कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है। सो इन्होंने अभी एक रिपोर्ट पब्लिश करी है। व्हाट इज दिस रिपोर्ट? इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इट फोकस्ड ऑन पोल्यूशन इश्यूज, प्योर अर्थ हैव रिलीज्ड अ रिपोर्ट। व्हाट इज दिस रिपोर्ट? द टॉक्सिक ट्रुथ, द चिल्ड्रंस एक्सपोजर टू लेड पोल्यूशन अंडरमाइंस द जनरेशन पोटेंशियल। नाउ गाइस, ये लेड पोल्यूशन, ज्यादातर जो आपका लेड है वो, व्हाट इज द सोर्स ऑफ लेड पोल्यूशन? अगर मैं सोर्स की बात करूं तो एक सबसे बड़ा सोर्स है ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, खास तौर पर बैटरीज। जितने भी हम बैटरीज यूज करते हैं ना गाइस, फॉर एग्जांपल आपके फोन की बैटरी, फोन में तो अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है, वी आर मूविंग टू लिथियम आयन बैटरीज। अगर आप देखेंगे कभी डिस्क्रिप्शन अपने फोन की पढ़ेंगे, सो लिथियम आयन बैटरीज पर आप चीजें चेंज होती जा रही है, ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। बट आपके लैपटॉप की बैटरी, आपके अलग टीवीज की बैटरीज, या उन सब में, ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में आपके लेड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। और फिर जो डिस्पोजल है, जब भी आप ऐसे किसी इलेक्ट्रॉनिक को आप डिस्पोज करते हो तो उसका प्रॉपर हैंडलिंग या वेस्ट मैनेजमेंट हमारे देश में, या इनफैक्ट ये तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ही बहुत प्रॉपर नहीं है। खास तौर पर ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है, अमेरिका जैसी कंट्री है, जो कि इतने ज्यादा, गाइस ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स है कि अगर मान के चलो एक इंडियन इंडिविजुअल 2 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करता है तो उसके कंपैरिजन में एक अमेरिकन लगभग 10 से 15 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करता है, जिसके अंदर वैक्यूम क्लीनर, मॉपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ उनका इलेक्ट्रॉनिक होता जा रहा है। सो जिसकी वजह से ये पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। एंड वो सारी कंट्रीज डिस्पोज कर देती है अपने ऐसे वेस्ट को, कहां पर? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को या डेवलपिंग कंट्रीज को, जिसमें से सबसे बड़ा सेंटर इस ई वेस्ट का है पाकिस्तान, कराची पोर्ट। ठीक है, इसकी एक बाकायदा मैंने डॉक्यूमेंट्री अपने एनवायरमेंटल स्टडीज में, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, उसमें पढ़ी थी। नाउ let us just quickly come to the findings of the report. Lead poisoning is affecting the children on a massive and a previously unknown scale. Around 1 out of 3 children, which amounts to 800 million globally, have the blood lead levels at above 5 microgram per deciliter. तो यानी ये पोल्यूटेंट के फॉर्म में ब्लड में घुलता जा रहा है। यानी हर 3 में से एक बच्चे को लेड पोल्यूशन है। एंड हाफ ऑफ दीज चिल्ड्रंस लिव इन साउथ एशिया गाइज। अभी मैंने आपको यही कोट करा था कि वाई कंट्रीज लाइक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। सो इसके अंदर गाइज, साउथ एशिया के अंदर आपको पता है कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती है। ठीक है, इसमें हमारा इंडिया भी है। ठीक है, सो इंडिया इज ऑल्सो बीइंग अफेक्टेड हेयर। सो हाउ डज द लेड अफेक्ट्स द चिल्ड्रन? नाउ गाइज, कई बार ऐसे क्वेश्चन सीधा आ जाते हैं जो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो जीएस का है, एनवायरमेंट का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ लेड पोल्यूशन, इनमें से कौन कौन सा प्राइमरी पोल्यूशन है, कौन सा सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। ऐसे कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बट लेट अस फोकस है। सो लेड इज अ पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन दैट कॉजेस इररिपेरेबल हार्म टू द चिल्ड्रंस ब्रेन। ठीक है, ये एक न्यूरोटॉक्सिन क्रिएट करता है जिससे सीधा ब्रेन इंपैक्ट होती है। इट पर्टिकुलरली डिस्ट्रक्टिव टू द बेबीज एंड द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5। खास तौर पर छोटे बच्चे इसमें डायरेक्ट इंपैक्ट होते हैं। इट डैमेजेस द ब्रेन बिफोर दे हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू फुली डेवलप, कॉजिंग देम द लाइफ लॉन्ग न्यूरोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड फिजिकल इम्पेयरमेंट। ठीक है, सो लाइफ लॉन्ग उनको कॉग्निटिव स्किल्स में, न्यूरोलॉजिकल मतलब बच्चा थोड़ा सा डिसलेक्सिक हो सकता है। डिसलेक्सिक आपने तारे जमीन पर देखी होगी, उसके रीजंस भी ये लेड पोल्यूशन हो सकते हैं। फिजिकल इम्पेयरमेंट मतलब हाथ ना होना, फिजिकली चैलेंज होना, बॉडी में किसी ना किसी तरह का फिजिकल चैलेंज होना, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो इसके बाद द चाइल्डहुड लीड एक्सपोजर has also been linked to the mental health and the behavioral problems and increase in the crime and violence. Okay, the older children suffer from severe consequences including increased risk of kidney damage and cardiovascular diseases in the later half. So ऐसा नहीं है कि हम बड़े adult इससे safe है. It can impact the kidneys, it can impact the cardiovascular disease, etc., etc. So how it costs the countries? The childhood lead exposure is estimated to cost lower
and middle income countries, and almost 1 trillion due to the loss of economic potential of these over the lifetime. Now guys, how it is studied as a economic potential. $1 ट्रिलियन का लॉस है, पूरे $1 ट्रिलियन का हमें लॉस हो जाता है इस लेड पोल्यूशन से। कैसे गाइस? अगर इसको आप समझना चाहते हो तो एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं गाइस। मान के चलो अगर एक चाइल्ड किसी ऐसे लेड पोल्यूशन की वजह से अपने स्टार्टिंग की एज में बहुत अनवेल है, ठीक है, वो हेल्दी नहीं है, ही इज अनहेल्दी, ठीक है, ही इज अनहेल्दी, तो वो बच्चा बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, एजुकेशन नहीं मिलेगी उसको बहुत अच्छी, या मिलेगी भी तो he won't be able to perform because of the reasons, mental health and all the other health problems associated with it. Then once this child will grow up, obviously he will not get a good standard of living, that means he will not be able to get a good job, so straight away उसकी economic life impact होगी, और फर्दर उसकी फैमिली की भी लाइफ इम्पैक्ट होगी। कैसे? कि वो जब खुद वेल ऑफ नहीं होगा तो उसके जो बच्चे, द फ्यूचर जनरेशन विल कम, क्या वो इकोनॉमिकली वेल ऑफ होंगे? क्या फिर वो आगे पढ़ पाएंगे? तो सोच के देखिए, ज्यादातर ये किसको इम्पैक्ट करेगा? लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को, और मिडिल इनकम कंट्रीज में गाइस इंडिया जैसा देश भी आता है। सो दीज प्रॉब्लम्स आर डायरेक्टली लिंक्ड टू आवर डेली लाइफ। सो व्हाट आर द फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टू लेड पोल्यूशन? ठीक है, इसमें इनफॉर्मल एंड सबस्टैंडर्ड रिसाइकलिंग ऑफ लेड एसिड बैटरीज, ये मैंने आपको पहले बताया था। व्हीकल ओनरशिप, इंक्रीज इन द व्हीकल ओनरशिप विद द लैक ऑफ व्हीकल बैटरी रिसाइकलिंग रेगुलेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी मैंने आपको अभी समझाया था। वर्कर्स इन डेंजरस एंड ऑफन इलीगल रिसाइकलिंग ऑपरेशन ब्रेक ओपन द बैटरी, स्पिल द एसिड एंड लेस डस्ट इज इन द सॉइल। सो जहां पर भी प्रॉपर इसकी डिसमेंटलिंग होगी तो उस लेड का सीधा पानी में मिल जाना, उस लेड का सॉइल में मिल जाना, जिसकी वजह से ये लेड फैल सकता है। They also smelt that recover the lead in crude open air furnaces that emit toxic fumes, poisoning and surrounding the community. Now guys, एक vehicular pollution में मैंने आपको पढ़ाया था, if you remember BS6 व्हीकल, मैंने आपको लास्ट करंट अफेयर में इसको पढ़ाया था कि इंडिया ने जो भारत स्टेज नॉर्म 4 है उससे हमने सीधा स्विच कर दिया है BS6 के व्हीकल्स में। या अगर आपने अभी अप्रैल 2020 के बाद, अगर आपने अप्रैल 2020 के बाद कोई भी नई कार परचेज करी होगी या बाइक परचेज करी होगी, वो BS6 होगी। तो BS6 में सबसे इंपॉर्टेंट जो पोल्यूटेंट जिस पर कंपनियों को काम करना पड़ा है वो ये लेड पोल्यूशन ही है, कि भाई लेड के ऑक्साइड्स इंजन से या एग्जॉस्ट से बाहर नहीं आने चाहिए, क्योंकि एक व्हीकुलर पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा रीजन था लेड पोल्यूशन के। ओके, इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। ठीक है, बाय द वे मैं आपको इस पूरे सेशन का PDF फ्री में दूंगा। आपको बस क्या करना होगा, ये टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करना होगा, इसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, सो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बात करते हैं गाइस वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानूंगा। 10 अगस्त को मनाया जाता है। बायोफ्यूल क्या होता है गाइस? बायोफ्यूल एक ऐसा फ्यूल है जिसको आप नेचुरली अकरिंग चीजों से एक्सट्रैक्ट करते हो। ठीक है, फ्यूल क्या होता है? एक नेचुरल एक कंबशन क्रिएट करता है। जब ये कंबशन नेचुरल चीजों से क्रिएट होता है, जिसकी उससे ऐसे फ्यूल को हम बायोफ्यूल कह देते हैं। सॉरी, ओके, सो इसको टू रेज द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल्स, इसको एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर रखा गया है। और इस डे को 10 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? बिकॉज सर रोडोल्फ क्रिश्चियन कार्ल डीजल, द इन्वेंटर ऑफ डीजल इंजन, हु रैन द इंजन विद पीनट ऑयल इन 1893। तो सबसे पहला आप कह सकते हो कि इसको मनाने के लिए जो डीजल इंजन के इन्वेंटर हैं उनके एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रखते हुए 10 अगस्त को डेट को चुना जाता है। सो इंडिया में ये डे बहुत लेट शुरू हुआ, बट हमने करा बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। 2015 से हम इसको बना रहे हैं, और 2020 की थीम थी बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। अगेन आई वुडंट से कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप ध्यान रखना। अगर मैं बायोफ्यूल की आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन बताऊं तो एनी हाइड्रोकार्बन फ्यूल that is produced from an organic matter
living or once living material in a short period of time, days, weeks, events, and month, is considered to be a biofuel. Okay, it may be solid, liquid, or gaseous in nature. For example, solid में आपको wood, dried plants, manure, इन सब से आप एनर्जी क्रिएट कर सकते हो. लिक्विड से बायो एथेनॉल, बायोडीजल, ये तो गाइस यूज होना शुरू हो गया है. बायोडीजल से तो अभी प्लेन्स भी उड़ने शुरू हो गए, हमारी इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स उड़ने शुरू हो गए. क्या आप मुझे हमारे देश की एयरफोर्स की पहली ऐसी स्क्वाड्रन बता सकते हैं जो बायोडीजल से चलेगी? जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि हमारे एयरफोर्स में ऐसी कौन सी स्क्वाड्रन है जो बायोफ्यूल से, जिसको उड़ाने की परमिशन दे दी गई थी रिसेंटली. ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, 2019 की जो 26 जनवरी थी गाइस, 2019 की 26 जनवरी में जितने भी प्लेन्स ने फ्लाई पास करा था, दे ऑल यूज्ड बायोडीजल. उनके अंदर बायोडीजल की ब्लेंडिंग करी गई थी और ऐसा पहली बार हुआ था. ठीक है, सो लेट्स सी इस 26 जनवरी पे ऐसा कुछ होता है नहीं होता, या 2020 के बारे में ऐसा मुझे कुछ याद नहीं है कि ऐसा कुछ आया था. हाउएवर नेक्स्ट स्टेट में अगर हम चले, गैसियस में बायोगैस होता है. ठीक है, सो क्लासिफिकेशन अगर हम बायोफ्यूल की हम करें तो इसको 4 जनरेशन में बांटा गया है. फर्स्ट जनरेशन में आप क्या आ जाएंगे, कन्वेंशनल बायोफ्यूल. ठीक है, जो कि आप बचपन से जानते हैं, जैसे बायोगैस, कंपोस्ट. कंपोस्ट कैसे बनता था, मीथेन कैसे बनती थी, गड्ढा कर दिया जाता था, गड्ढे के अंदर आप सब कुछ ऐसा सब कुछ डाल देते थे जो भी ऑर्गेनिक है, और उस गड्ढे को आप बंद कर दो. जैसे ही आपने इसको बंद करा, इसके अंदर गैसेस रिलीज होंगी, उसको आप एक्सट्रैक्ट करके उसको यूज करके आप यूज कर सकते हो. ऐसा को फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल बोला गया. सेकेंड जनरेशन, दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सस्टेनेबल फीड स्टॉक, यानी बचे हुए ऐसे फीड स्टॉक से उसका इस्तेमाल करके, जैसे आप शुगर केन के उसमें कर सकते हो. गाइस आप सबको पता होगा कि चीनी शुगर केन से बनती है. उसके बाद एक्सट्रैक्शन, या कभी भी गन्ने का जूस, इफ यू हैव एवर हैड द शुगर केन एक्सट्रैक्ट, द शुगर केन जूस, सो once the shopkeeper extract the sugarcane juice or गन्ने का रस, then what he is left over is good amount of good amount of waste, which is called as the baggies or molasses. ठीक है, now imagine the same way in the sugar industry. अगर चीनी मिलों में हम बात करें तो इतना ज्यादा अमाउंट में ये बैगीज बनेगा. अब उस बैगीज को, उस फीड स्टॉक को भी आप यूज कर सकते हो बायोफ्यूल बनाने में. इसको हम सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल का नाम देते हैं. थर्ड जनरेशन में आ जाते हैं आपके एल्गी कल्चर. आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक ऐड कर रखा है, एक प्लांट सा. ये एक बकायदा मैन मेड सा पॉन्ड सा आप कह लो, या लेक सा कह लो. इसके अंदर डेलिबरेटली एल्गी को उगाया जाएगा. अब जब एल्गी इसमें उगाया जाएगा तो होगा क्या, एल्गी को कलेक्ट करके उससे फिर एक्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा बायोफ्यूल. तो ये थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल में आ जाता है. और फोर्थ जनरेशन में आ जाएगा कुछ ऐसी स्पेसिफिकली क्रॉप्स को यूज करना और उनके रेजिड्यू से आप बायोफ्यूल को एक्सट्रैक्ट करना. जैसे एक आपके बंगाल साइड में एक क्रॉप उगता है, जथरोपा क्रॉप होता है. इसको गूगल करके देखना, आपको मिल जाएगा. ये बकायदा क्रॉप ही हम इसलिए उगा रहे हैं कि इससे हम बायोडीजल और बायोफ्यूल बना सके. ठीक है, सो ये कुछ ऐसी जेनेटिकली इंजीनियर्ड और ऐसी कुछ क्रॉप्स होती है जिसको इस्तेमाल करके आप इन सबको इस्तेमाल कर सकते हो और एज अल्टरनेटिव फ्यूल यूज कर सकते हो. आने वाले टाइम में गाइज यही सब आपके फ्यूल होने वाले हैं. आज हम इसको बस पढ़ रहे हैं थ्योरीज के फॉर्म में, हाउएवर दे आर प्रैक्टिकल. पर बहुत जल्द इन सबको मेन स्ट्रीम लाइन में लाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ द आवर. ओके, नेक्स्ट इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, इसको मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा अपकमिंग सीएपीएफ एग्जाम के लिए, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव, OSOWOG, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड. नाउ it is under Ministry of New Renewable Energy, which has put calls for the proposal of this initiative. What is this initiative? It is basically a global sort of initiative which is proposed by India, which have to set a framework for facilitating a global cooperation which aims at building a global ecosystem of interconnected renewable energy resources that can easily be shared. So the details of this initiative, इसके अंदर क्या होगा, अगर मैं थोड़ा सा हिंदी में भी बोल दूं, सो
एक ग्लोबल कॉर्पोरेशन ये एम करता है जिसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करा जाए। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का एक खुद का इनिशिएटिव है जहां पर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई है जो कि यूएन के अंडर आती है, जिसकी हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, इसके अंदर तो सिर्फ एक एनर्जी को प्रपोज करा गया है, वो है सोलर एनर्जी, बट इसके अलावा कितनी सारी और भी रिन्यूएबल एनर्जी है जिसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, बायो फ्यूल की जो एनर्जी है वो भी एक आपका रिन्यूएबल एनर्जी की ही सोर्सेस है। ठीक है, इसकी जो पेरेंट बॉडी है जिसके अंदर ये काम करेगा वो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? To build a global consensus about sharing the solar resources among more than 140 countries of West Asia and South Asia. The vision is the sun never sets and is a constant at some geographical location globally at any given point of time. Now, there are some places, guys, where the sun never sets. ठीक है, जहां पर सूरज की बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी रहती है। अगर मैं बात करूं ट्रॉपिकल कंट्रीज की बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है, ये मतलब यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि यहाँ सूरज छुपता ही नहीं है, ठीक है, बट सन की अवेलेबिलिटी आपको 365 दिन मिलेगी इन ट्रॉपिकल रीजन्स में, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसके बीच में आपको बहुत सन मिलेगा। तो अगर आप कुछ ऐसे ग्रिड्स बना सको जहां पर आप इस एनर्जी को रिस्टोर करके इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सको, तो ये एक बहुत हेल्प करेगा हमारे ओवरऑल अर्थ को protect करने में। So this grid shall be interconnected with the African power pools also at a large later stage. It has been taken up under the technical assistance program of the World Bank. The potential and the benefits of this initiative, India would generate almost 40% of the power from non-fossil fuels by 2030. And India का अपना खुद का भी टारगेट है कि लगभग 2022 तक 175 गीगावाट of power India will be generating from renewable sources which includes sun, wind, etc, etc. Out of this, if you want to know the distribution, 100 gigawatt will be solar and 75 gigawatt will be the wind. ठीक है, so 175 total gigawatt. So this is what one world, one sun and one grid. Okay, then it is some more information. You can pause it and read it over here. Nothing much important. I have almost discussed the importance here. Next is National Clean Air Program, NCAP, important one. ऐसे कुछ मेजर प्रोग्राम्स है, जैसे इससे पहले मैंने आपको एक गार्प बताया था, ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान, गार्प टू काउंटर एयर पोल्यूशन, ये भी इसी से लिंक्ड है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। सो ये भी न्यूज में रहा, अभी हम इसको भी डिस्कस करते हैं, बट पहले मैं आपको बता दूं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसको बोला था ओवर इट्स रिपोर्ट ऑन नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम विच प्रपोजेस 20 to 30% रिडक्शन ऑफ ऑल एयर पोल्यूशन बाय 2024, यानी 2024 तक आप 20 से 30% पोल्यूशन को कम कर दोगे। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने फटकार लगाई है इस मिनिस्ट्री को। क्या थी वो? The ministry had recently informed NGT, National Grid Tribunal, that a committee has concluded that 20 to 30% of the pollutant reduction under NCAP seems realistic. इन्होंने बोला कि ये possible है. And the ministry had further said that the pollution could not be controlled except to the extent of certain percentage. अब ये बोलते हैं कि अब हम इसको उतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज 20 to 30% इन्होंने बहुत ज्यादा हवाबाजी वाला नंबर दे दिया था। सो एनजीटी हैज डिसअप्रूव्ड द सबमिशन, सेइंग दैट द मिनिस्ट्रीज व्यू वाज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ आर्टिकल 21 एंड ऑल्सो अगेंस्ट द स्टैट्यूटरी मैंडेट। आर्टिकल 21 के अगेंस्ट कैसे है ये? बिकॉज गाइस, आर्टिकल 21 आपको प्रोवाइड करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब राइट टू लाइफ के अंदर, इफ यू वांट टू इलैबोरेट, राइट टू लाइफ के अंदर आता है गाइस राइट टू लिव इन अ क्लीन एनवायरमेंट। सो एनजीटी ने स्ट्रेट अवे इसको चैलेंज करा है कि भाई आप लोगों से उनका आर्टिकल 21 हैम्पर कर रहे हो। ओके,
So what are the other observations? That right to clean air stood recognized as a part of right to life. मैंने आपको बताया था ना. And the failure to address the air pollution was the denial of right to life. Okay, I have just explained this. So the enforcement of the sustainable development principle, the public trust doctrine required stern measures should be adopted to give effect to the mandate of international obligations for which Environment Protection Act of 1986 and other laws has been enacted. Okay. So under NCAP, the target is to achieve the norms in 10 years and to reduce the load to the extent of almost 35% in first 3 years. So this meant for 10-year pollution would remain unaddressed, which is too long period for tolerating the violation when the clean air of right to life was guaranteed. Okay. सो दिस इज ऑल अबाउट नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. अगर मैं आप इसके बारे में बताऊं, सो ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट MOEF के अंदर आता है. इट इज नॉट नोटिफाइड अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. सो ये सबसे बड़ी इसकी वो है कि इट इज नॉट नोटिफाइड. ठीक है. सो इट इज बेसिकली ऑन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन. एक एग्जीक्यूटिव एक्शन है ये कि भाई आपकी जो ब्यूरोक्रेट्स है उन्होंने ये इस प्लान को बना दिया, बट इसको इंक्लूड नहीं करा गया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में. सो इसके अंदर क्या है? इट इज अ स्कीम टू प्रोवाइड द स्टेट्स एंड द सेंटर विद अ फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन. ये बकायदा एक फ्रेमवर्क बनाएगा. अ मेजर गोल ऑफ रिड्यूसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कोर्स एंड द फाइन पार्टिकल्स. कोर्स पार्टिकल्स में क्या आएगा? द पार्टिकुलेट मैटर्स ऑफ PM10. ठीक है. PM10 आपका कोर्स यानी मोटा ये हो गया, और फाइन पार्टिकल्स में आ जाएगा आपका PM2.5. ठीक है. जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोमीटर्स का होता है उसको हम PM2.5 बोलते हैं. इन द एटमॉस्फेयर एटलीस्ट बाय 20% बाय द ईयर ऑफ 2024. ठीक है. 2024 तक. ये टारगेट्स जरूर याद रखना गाइस, बिकॉज इससे स्ट्रेट अवे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ लेती है. 2024 तक 20% टारगेट रिडक्शन है, विद 2017 एज अ बेस ईयर फॉर the comparison. Okay, so who all will participate? Apart from the experts of the industry, ये बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इसके अंदर कोलैबोरेशन करेगी, जिसके अंदर रोड ट्रांसपोर्ट, पेट्रोलियम, रिन्यूएबल एनर्जी, हैवी इंडस्ट्री, माइनिंग, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, नीति आयोग, CPCB, ये सब कोई मिलकर इसके अंदर करेंगे. इसके अंदर टोटल 102 सिटीज को चुना गया था. ठीक है. Were chosen as non-attainment cities with exception to Delhi, Mumbai, because they are the most of those who are chosen in the tier 2 cities. So the cities are selected on the basis of the ambient air quality data from National Air Quality Monitoring Program from 2011 to 2015. And however, Maharashtra has the maximum number of cities which are chosen in NCAP plan. ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप थोड़ा बहुत फैक्ट्स है जिसको आप थोड़ा सा नजर में रख सकते हो. ओके. सो ये थे उसके आपके टोटल जो इसको एक न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने यहाँ पर ऐड करी है. सो इट गिव्स यू एवरीथिंग इन वन गो. ठीक है. 102 सिटीज इसके अंदर आएंगी, तो ऑलमोस्ट 30% का टोटल ओवरऑल रिडक्शन होना चाहिए, जो कि अब रियलिस्टिक नहीं है, जिसके ऊपर ये इशू था, बिकॉज NGT ने इसी के ऊपर फटकार लगाई है. इसके अंदर क्या क्या होगा? नेशनल एमिशन इन्वेंट्री बनेगी, एयर इंफॉर्मेशन सेंटर्स बनेंगे, सोर्स अपॉइंटमेंट स्टडीज होंगी, इंडोर एयर पोल्यूशन पे काम होगा, रूरल मॉनिटरिंग होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास गाइस. टाइम नाउ फॉर द डेली मोटिवेशन, बट उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना. सो आज की मोटिवेशन क्या है? एवरी ग्रेट ड्रीम बिगन्स विद अ बिगिनर और अ ड्रीमर. ठीक है. हर नया सपना एक सपने देखने वाले से शुरू होता है. सो अगर आपने सपने देखे हैं कंधों पर वो सितारे लगाने के, तो वो सपना जरूर सच होगा गाइस, क्योंकि वो सपना देखने वाले भी आप हैं. बट हाँ, उसमें आपको काम भी उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा उन सितारों को लेने के लिए. सो इसका PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए. वहां पर मैं आपको सारे लिंक्स भी देता रहता हूँ वीडियोस के, और जब भी मैं आऊंगा आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू भी और टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी. बहुत जल्द मैं अपने पेड कोर्सेज GS के लिए शुरू करूंगा, SSB के लिए शुरू करूंगा, बट उसके लिए मुझे पहले, और लाइव क्लासेस भी मैं बहुत जल्दी आप सबके लिए लेके आऊंगा, बट उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने घर के सभी फोनों से सब्सक्राइब करा दीजिए,
इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सो आज की इस एनवायरनमेंट की वीडियो में इतना ही। अब मैं आपके लिए लास्ट वीडियो लेके आऊंगा मिसलेनियस की, और जिसने भी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है उसका भी लिंक, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर इस वीडियो को देख सकते हो। सो टिल देन, अब मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेहनत करते रहिए दोस्तों, सपने जरूर सच होंगे। टेक केयर एवरीवन।